what do you think? How should people be judged when getting into colleges? दक्ष भाई लैग हो रहा है. Sorry, हाँ बोला, वापस बोला. हाँ मैं बोल रहा था how are you अंशुल, अभिराम and तनिष्वर. हाँ बाकी लोगों को हेलो. हेलो भाई. Hey everyone. Guys, how are you? कॉन्टेक्स्ट के लिए हम बहस कर रहे हैं स्कूल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो ताकि तुम लोगों को थोड़ा आइडिया रहे. No one is pro schools. No one is against school. प्रो स्कूल कितने हैं? प्रो स्कूल कितने लोग हैं हम में से? अरे कोई भी नहीं, मैं खुद नहीं हूँ प्रो स्कूल ना, मैं अगेंस्ट हूँ. अरे वैसे नहीं ना, एवरीबॉडी इज इन द मिडिल की स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ना, कि घर पे बोल दिया कि भाई नहीं स्कूल नहीं छोड़ रहा हूँ मैं आज से. मैं स्कूल में हूँ तो मैं नहीं होऊंगा. क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? हाँ, क्वेश्चन ये था कि इट्स फाइन, लाइक दे आर ट्राइंग टू गिव मोर ऑप्शंस एंड दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बेस फॉर different fields, whatever. But how do you think they should be judged? Like students should be judged when getting into colleges? मेरे को ऐसा लगता है कि वो जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे तुम जज करते हो गलत है, वो नहीं करना चाहिए. But again, कि physics like STEM is important. ठीक है, if you are becoming a coder. How do you know कि मेरे को अगर आर्टिस्ट बनना है, मेकर बनना है, तो मेरे को STEM की जरूरत है? मेरे को तो नहीं. I would like to know how is STEM important if you want to be a coder. But like I have mixed opinion in that as well. But still, like, अभी basic चीजें तो you can. It depends on the word coder. What do you define as a coder? If you define the coder as a web programmer, no, obviously you don't need. But if you define a coder by someone who's doing hardware and software interlocking, they need to know the engineering aspect of it as well, no? They need to know how registers work, how assembly works. Yeah. No, I don't think they need to know how assembly. I mean, chemistry to nahi chahiye at least. Idea. Basic maths, assembly is not. They chemistry. need to know maths. But yeah, most of the coder are not doing that, right? Most of the coder, like everyone aspires to be a software engineer after all, who take up STEM, and most of it is insignificant, according to me. That is true, but again, like the system is trying to give us more options, right? So उनको नहीं पता है कि you'll opt for like basic front end or you'll opt for something like machine learning, which requires. I think in India we select based on PCM because the government can't admit that we don't have computers in every government school. So I think they have a basic thing like JEE where they judge on basis of PCM, and like they can't simply do it, right? If they say we will make a separate course and we will judge based on your computer skills, then like people will revolt. Like how will a poor guy get a computer? You're not giving them opportunities. How can you? Yeah, exactly. Think about it. I think it's because of think that. About it. How do they teach engineering in India? In the first year, you have biology. You have 10 others, chemistry and other subjects as well. Na? Even if you're doing CS engineering, that's how they teach it. So obviously, people need to know about PCM to get into. But उसका भी logic है ना दक्ष. It's a catch 22. उसका तो logic है कि engineering में biotech, engineering में first year में biotech, drawing ये सब कुछ क्यों पढ़ाते हैं? इसका भी logic है ना. क्यों? ताकि हम लोग एक्सपोज हो अलग अलग टॉपिक्स पे, ताकि हमारा मेंटलिटी चेंज हो सके. एक्सपोजर वाला पॉइंट है ना. तुम 2 मिनट के लिए cannot understand a lot of those things if you have not done PCM ना. I mean quality of education, क्वालिटी को साइड रख दो ना, कि टीचर ने किस तरीके से पढ़ाया उसको साइड रख दो. तुम इस तरीके से देखो कि जो ऑब्जेक्टिव थॉट था, जो आइडियल सिचुएशन वाला थॉट था, वो क्या था. अब टीचर ने क्या किया वो अलग बात है, बट बायोटेक इज फ्यूचर, राइट? अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो तो तुम्हें थोड़ी बहुत ईजीडी वगैरह आनी चाहिए. केमिस्ट्री का भी बेसिक थोड़ा बहुत आना चाहिए. उस हिसाब से सोचो पढ़ाया कैसे गया वो तो. बोलो. प्रॉब्लम नहीं है मुझे. मेरा बस ये कहना है कि यू शुडंट बी जजिंग मी बेस्ड ऑन दोस थिंग्स. हाँ, तुमको एक्सपोजर देना है वो दे दो, पर तुम मेरे को अभी चीज करनी है और तुम मेरे को इस चीज के ऊपर जज करोगे जो कि रेलेवेंट है ही नहीं उस चीज से, तो फिर व्हाई आर डूइंग दैट. अगर तुम ये कह रहे हो कि अगर किसी की केमिस्ट्री पास नहीं हुई तो उसको रहने दो ना, उसको प्रेशराइज मत करो कि केमिस्ट्री पास कर तू. ये वाला पॉइंट हाँ मैं एग्री करता हूँ. ये तो मैं भी एग्री करता हूँ.
मैं तो एज अ जनरल रूल कह रहा था Also- दूसरी चीजों के बारे में. A solution to this would be कि अगर if we can shift this whole process of selecting a field like a little bit early, अगर 10th में ही ये हो जाए, then I that think won't work ना. That won't work. but हाँ maturity अब नहीं देखो, maturity नहीं है. किसी बंदे को 25 साल की उम्र में पता चलता है कि More than copywriter 70% of the kids don't know. Actually, 90% of the kids don't know what they want to do in life. They realize later on. Exactly. 10th क्लास में कैसे किसी को पता होगा कि तो more the इंजीनियरिंग करने के बाद चले जाते हैं यार मैनेजमेंट में. They don't know what they want to do. Even at postgraduate level, even at some PhDs don't know what to do. Ankur Warikoo को देख ले, you know, he did astrophysics. Later on, realized that I don't like astrophysics at all. I mean, I like it, but I don't want the material. So he I think went for business. 2 पॉइंट मुझे लग रहे हैं. देखो आज मेरे को बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही है, इंटरेस्ट कर रही है. दैट डजंट नेसेसरीली मीन कि मेरे को 10 साल बाद करेगी. एंड दैट डजंट मीन तो अभी हो रहा है वो जेन्युइन है नहीं. तो आज का जेन्युइन हो सकता है, कल का भी जेन्युइन हो सकता है. वो चीज नहीं है कि एक बार एक पकड़ लो तो फिर लाइफ भर वही करो. ये एक पॉइंट है. और दूसरी बात क्या थी कि मोर द रीजन टू लेट पीपल एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स ना. मुझे क्या लगता है पता है क्या, कि बहुत बार छोटे जो एज के बच्चे हैं उनको उतनी वैल्यू दी नहीं जाती है, उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है, या उनको उतना क्रेडिबल नहीं पकड़ सकते, क्या बोल सकते हैं उसको, उतना कॉम्पिटेंट नहीं समझा जाता है जितना वो है. उनको बहुत समझ में आती है चीजें, बस हम नहीं देते उनको उतना क्रेडिट. तो अगर हम उनके ऊपर थोड़ा और ट्रस्ट करने लग जाए और उनको बोले कि ये सारी चीजें और आप ट्राई करो चीजें और देखो कि आपको क्या इंटरेस्ट करती है, तो आई एम श्योर कि उनको पता है. मेरे हिसाब से द ओनली प्रॉब्लम विद इंडियन एजुकेशन सिस्टम होल जो सेटअप है ना, ये कॉलेज स्कूल या जो भी पेरेंटिंग का मिला के भी, उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि फ्रीडम बहुत कम है एक्सपेरिमेंटेशन की या खुद को ट्राई आउट करने की. बाय द वे, बिफोर वी exposure मूव ऑन लेने टू की द बहुत कम फ्रीडम. बिफोर वी मूव ऑन टू द एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट, किस-किसने यहाँ पे पीसीएम ले करी है? किस-किसने पीसीएम करी है यहाँ से? सबने करी है ना? मैंने भी करी है. ओके, दिग्विजय तूने नहीं करी होगी, तू 10th में है ना, ये 11th में है? मैं 11th में हूँ, मैंने करी है, इसने भी करी है. So the thing is, have you heard of the resonance hybrid chemistry model? कि there's no one perfect arrangement of things. There are many arrangements, but together, when they come together, there's a perfect arrangement. That's what needs to happen with this system as well. There are 4 or 5 different types of ways you can do things, but there's no one right way. You have to club them together or average them out in a way that it makes sense. I think this is something just provide options, na, like user will select what's best for them. Just allow flexible different system to work together, and a family or a individual student can decide whatever he want to do. Like there is a thing called homeschooling. Like it's looked down upon, but like unschooling is different. Homeschooling, in homeschooling you get the degree. It's like a distance education program. So होमस्कूलिंग वाले पे मेरे को याद आ गया, हम वो डिस्कस कर रहे थे ना, केस स्टडी. हाँ, केस स्टडी है. ठीक है, 2 स्टूडेंट की केस स्टडी लेते हैं. एक स्टूडेंट जो पैदा होने से सब उसको घर पे पढ़ाया, ठीक है, होमस्कूलिंग करी उसकी, जो वो करना चाहता था एक्सपेरिमेंट करने दिया उसको, ठीक है, सब कुछ उसको. दैट्स अनस्कूलिंग. हाँ, मतलब घर पे पढ़ा रहे हैं उसको, होमस्कूलिंग कह लो, अनस्कूलिंग कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, उसको सारा पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से डाइव डीप इनटू सिमेंटिक्स छोड़ दो. मतलब वर्ड का मतलब रहने दो, भावनाओं पे जाओ. हाँ, जिस बात फेफड़ों पे लो, ठीक है, दिल पे मतलब फेफड़ों पे लो. तो एक बच्चे को घर पे पढ़ाया, सब कुछ उसका घर पे हो रहा है, ठीक है, जो वो करना चाहता है, कोडर बनना चाहता है, कॉपीराइटर, जो भी बनना चाहता है, उसको घर पे करवा रहे हैं. दूसरे को स्कूल में भेजा, बट स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ उसको फ्रीडम है एक्सपेरिमेंट करने की, ठीक है, वो स्कूल का भी पढ़ रहा है, ठीक है, और साथ में जो बाहर का एक्सपेरिमेंटेशन है कि ये फील्ड क्या होती है, वो फील्ड क्या होती है, इंटरनेट पे क्या एजुकेशन है, वो सब कुछ वो ले रहा है, ठीक. और तीसरा ले लेते हैं कि जो बिल्कुल स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है कन्वेंशनल वाला, उससे जा रहा है. तीनों में से कौन सा, मतलब ऑब्जेक्टिवली तो नहीं कह सकते इंडिविजुअलिस्टिक क्या है वो, मतलब तीनों में से सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सी है? मेरे ओपिनियन में सेकंड अप्रोच. मेरे फर्स्ट अप्रोच
Like you miss the First networking approach- aspect of school in the first approach, and Exactly. you develop social Exactly. skills. Exactly. That was my point. Yeah. मेरे को क्या लगता है पता है क्या, वो जो अनस्कूलिंग या होम स्कूलिंग वाली चीज है ना, दैट विल स्टिल वर्क, दैट माइट स्टिल वर्क, बिकॉज ऐसा That तो works, but if it depends only on your parents, how they. तुमने how ब्लैक they, मिरर you का वो know- एपिसोड देखा है? ब्लैक मिरर के एक एपिसोड में वो जो लेंस लगता है उसकी आंख में, देखा किसी ने? मैंने देखा है, बट उसमें बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जिसमें लेंस लगा होता है आँख पे। तो उसमें कंसेप्ट में बेसिकली कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंख में एक लेंस टाइप लगा देते हैं, डिजिटल लेंस, जो कि कंट्रोल कर सकता है कि बंदा कितना हार्मफुल चीजें देख सकता है। ठीक है, तो वो जो माँ होती है इस बच्चे की, वो क्या करती है NSFW कि filter. उसको NSFW फिल्टर लगा देती है। ठीक है, तो उसके पड़ोसी के पास एक कुत्ता होता है, उसको वो फिल्टर आउट कर देती है। ठीक है, उसको फिल्टर आउट करती है, उसको नहीं पता कि कुत्ता भौंक रहा है, उसको ब्लर इमेज दिखती है, ना ही आवाज आती है। तो ग्रोइंग अप उसने पूरी जिंदगी उसको ब्लड इमेज है, उसको नहीं पता कुत्ता क्या होता है। ठीक है, कुत्ते का डेंजर क्या होता है, वो सब कुछ नहीं पता। ठीक है, आफ्टर सम पॉइंट जब अडल्ट लाइफ में आती है तो काफी लंबी स्टोरी है, उसमें वो क्या करती है कि अपना हटवा देती है। वो फॉर द फर्स्ट टाइम जब वो उस डॉग के थ्रेट को एक्सपीरियंस करती है तो उसको समझ ही नहीं आ पाता कि मेरे को किस तरीके से हैंडल करना है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम होम स्कूल कर रहे हो ना, तो उसमें तुम Unschool. वो फिल्टर आउट कर रहे हो, देखो ये जो चीज तुम है ना, उसी ये ग्राफ बना रहे हो। The realities of life, harshly realities, like. हाँ हाँ हाँ, मेरे को क्या लगता है पता है That's क्या, why I like the second approach, ना. ये ऋतुज जो बोलो। ये जो आपने एनालॉजी लगाई है कि बड़ी हो जाती है और फिर वो हटा देती है, तो द थिंग इज कि आप उसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि यार मैं पैदा हो गई और 18 इयर्स के बाद ही मैं हटाऊंगा। वो चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा टेरिबल थी नहीं, तो वो उसको थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते थे। तो दैट्स द थिंग कि एक्सपोजर जो है उसको लिमिट में देते रहना, वो भी हो सकता है उसको प्रॉपर वे में आप स्टडी कर लो कि हाँ इतने एज में ये सारी चीजें एक्सपोजर मिलनी चाहिए, सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पहले कुछ जो आप करोगे, पहले बार जो एक्सपेरिमेंटेशन करोगे शायद वो सही ना हो, बट इवेंचुअली आपके पास इतना डेटा आ जाएगा कि आप एक्यूरेटली बता सकते हो कि ये बंदा इतना टाइम से ये सारी चीजें कंज्यूम कर रहा है, तो इसको अभी ये दिखाना सही होगा। तो और अगर घर पे तुम My एक्सपीरियंस दे रहे हो स्टूडेंट को या अपने बच्चे को, तो अगर तुम एक्सपीरियंस दे रहे हो फिर कहीं ना कहीं तरीके से तो कंट्रोल्ड है ना। स्कूल में सब कुछ रैंडम है, तुम कंट्रोल ही नहीं कर रहे हो किससे दोस्ती बनाएगा, क्या Serendipity होगा, है। कंट्रोल नहीं। स्कूल हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्कशॉप बेस मतलब एजुकेशन भी तो हो सकता है कि आप घर में पढ़ा रहे हो। स्कूल में क्या होता है कि आप 5 साल एक ही आदमी को देखते रहते हो। This is what I was saying कि if we can open source the whole model कि हाँ you homeschool kids and then you take them to events and ऐसा एक board Exactly. create किया जाए which gives some मतलब- guidelines कि how you can homeschool and वो लोग organize करवा सकते हैं events and etc. And of course like school में कोई event होता है तो we go there by our own vehicle whatever. So this is the same way this can be done in like in an open source way. इसको बहुत आसानी से एक्चुअली ऑलरेडी हो रहा है। अभी आप मेरे को अरे ये बताओ कि थील आप फेलोशिप को डिस्क्राइब कर रहा है लिटरली, लाइक नहीं, many वो तो smart. Teal fellowship is large. छोटा सा प्रोग्राम हो गया, ठीक है, बट अगर मेरे को लाइफ लॉन्ग सीखना है तो फिर वो भी चीज ऑलरेडी कर रहे हैं लोग। अब आप अगर देखोगे हमारी स्कूल में से कितने लोगों के स्कूल में एक डांस ऐसा सब्जेक्ट था, डांस किसी के इसमें प्रोबेबली नहीं था, बट लोग बाहर जाके क्लासेस ज्वाइन करके कर रहे हैं ना। तो द थिंग इज, और उसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब एक ही लेवल पे है या एक तो सब Yeah. ऊपर है तो सब नीचे है। तो करना क्या है हमको कि अगर समझो फिजिक्स चीज है तो उसका एक पूरा इंस्टीट्यूट बना दो, जैसे डांस की अकेडमी है, फिजिक्स की अकेडमी बना दो और वहां पे हर एक लेवल के लोग ला दो। तो फिर सोल्यूशन तो तुम्हारे को मिल गया। अभी तुमको अगर फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री करना है, वैसा कॉम्बिनेशन कर लो, मैथ कर लो साथ में। बट और ये इंस्टीट्यूट वाला गेम कब से स्टार्ट होगा? मतलब कि वो फिजिक्स वाले इंस्टीट्यूट में जा सकता है, डांस वाले इंस्टीट्यूट कब से कह रहे हो कि तुम कब से स्टार्ट होना चाहिए वो वाला पार्ट? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, उसके बेसिस पे आप जज मत करो कि ये जो ओवरऑल आइडिया है वो कितना सही है या नहीं। नहीं, तो पहली बात तो हाँ। करना है क्लियर कि वो अलग है। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आई एम नॉट श्योर क्या आंसर होगा। मैं बस एक मेरा गेस बता सकता हूँ कि गेस वर्क ही होगा जो भी मैं आंसर दूंगा, तो एक्यूरेट नहीं होगा। आई एम श्योर कि सब लोग गेस वर्क कर सकते हैं वो चीज। But how is this different from traditional schools? Like you are just providing them options to select the subjects, right? हाँ वही तो आप Exactly. फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हो तो एग्जैक्टली वो ट्यूशन क्लास ही हो गया हुआ। तो यू आर हाँ, जस्ट बिल्कुल। इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी इन यहाँ पे फिर से वही वाला कंसेप्ट आ गया है ना, एक्सपोजर वाला, कि पहले उनको हर चीज एक्सपीरियंस दो, फिर उसको कौन सी चीज समझ आती है उसमें जाने दो। अब जैसे
मैं एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को ना बहुत लोग मैसेज करते हैं कि भाई कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, स्कोप किस में है, मतलब बहुत मैसेज आते हैं मेरे को। तुम्हें भी आते होंगे दक्ष, तुम्हें भी आते होंगे कि कौन सी भाई पूरे स्कोप कौन दिन सी, भैया भाई, बता दो यार, पूरे दिन भैया एक लैंग्वेज बता एक दो। बार एक IITian ने पूछ लिया था, पूरे दिन यही मैसेज एक बार एक आएगा। IITian ने पूछ लिया था, मैं जज करने लग गया IIT को पूरे। एंड चल क्या रहा है? माय अच्छा, कोई आंसर इज IIT नहीं है यहाँ? ऑलवेज कि तुम क्या कर। नहीं तभी तो यहाँ पे हैं। मेरी अरे दीदी है। मतलब वैसे नहीं, अरे नॉट डेरोगेटरी वे में कि मतलब IITian होते तो कहीं किसी कॉर्पोरेट में बैठ के घिस रहे होते ना, क्योंकि 1 करोड़ का पैकेज लगा तो अब 9 to 5 या 9 to 8 देना ही है। ये इतना देखो, ये फ्रीडम कहाँ होता है भाई। यहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, तो हम बात नहीं कर सकते वो चीज, ठीक है, ये गलत है, बट ठीक है, मतलब भावना में समझ गया हूँ। मैं हूँ तो उस क्वेश्चन का इनडायरेक्ट कि भैया रिप्रेजेंटेटिव है कौन भाई सी तू। लैंग्वेज, हाँ उस क्वेश्चन का कि तुम्हें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए का सिंपल आंसर मैं देता हूँ कि बारी बारी सारी लैंग्वेज ट्राई कर, जो तेरे को सही लगे बैठ। एंड मेरे हिसाब से ये जो हम कह रहे हैं ना कि अलग अलग इंस्टीट्यूट होने चाहिए, उसके लिए भी सेम अप्रोच होनी चाहिए। तुम K10 तक लगा लो, K to 10 तक तुम एक्सपेरिमेंट करो, इसलिए मैंने एक्सपोजर दो। K10 बोला, बिकॉज K10 तक तुम सारी चीजें हाँ, सीख सकते हो। क्योंकि मान ले फॉर एग्जांपल, you hated dance all your life, you never took a dance class, you avoided it, but if you're not in school and if you're not near any places where dance happens and you've never tried it, or not even being, you have never been forced to try it, you'll never know that you end up enjoying it, right? If you try it at least forcibly, maybe you'll like it or maybe you'll hate it. Worst case scenario क्या है, you'll hate it and waste an hour of your time. देखो ना, अभी हमको हर एक चीज पहले ट्राई करने की जरूरत नहीं है उसमें इंटरेस्ट लाने के लिए। हमारे पास ऑप्शन क्या है, इंटरनेट का ऑप्शन है। तो अगर किसी बंदे को हम उसका जो अल्गोरिदम है, जो उसको एक्सपोजर का अल्गोरिदम है, हमने समझो K2 में जैसे हम कर रहे हैं और ये करेंगे हम K2 में, तो सारे जो वर्टिकल्स है, सारे जो प्रोफेशन है, उनके ऊपर वीडियोस क्यूरेट होगी। प्रोफेशन, ये अभी लाइफ स्किल वाला चीज हट गया, अभी इसमें प्रोफेशन वाला आ गया। और वो लोग तूने लाइफ स्किल्स हटा दिया? नहीं, मतलब वो सेपरेट चीज है, ये सेपरेट चीज है, ऐसे मैं बोल। तो अभी हमने उसको एक्सपोजर जो है वो हम कंट्रोल करेंगे और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो एल्गोरिदम बिल्ड करेगा कि उसको कैसी चीजें दिखानी है, और उसमें फिर रैंडमली हम ऐसी कोई चीज दिखाएंगे जो उसके एल्गोरिदम से एग्जैक्टली मैच नहीं करती है। जैसे अभी उसने बहुत सारा कंटेंट सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ही कर लिया, तो हम उसको थोड़ा सा बेसबॉल का दिखा देंगे फॉर एग्जाम्पल। तो अभी अगर उसको उस चीज में पहले इसमें इंटरेस्ट आता है तो फिर वो उसके अंदर और जा सकता है डीपर रैबिट होल में, एंड फिर अगर उसको और इंटरेस्ट आता है तो फिर देन ही कैन गो एंड ज्वाइन एन इंस्टीट्यूशन। और अभी Also, जैसे हाँ ये तो सब करते हैं ना, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। I mean, we watch a lot of YouTube videos on how to do algorithms and data structures, and we think that we'll be able to do it, we'll be able to be good at it. But when you try doing it, it sucks. You hate it, right? So watching someone do it and doing it yourself is completely different games, right? वो ठीक है, बट वो इजीएस्ट सॉल्यूशन है उसको एक्चुअली कवर अप करने का। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप बोलोगे कि स्कूल सारी चीजें एक्सपोजर दे रहा है तो फिर दैट्स आल्सो इनकरेक्ट ना। कितने देगा? 20 चीजें देगा, 20 चीजें थोड़ी ना है। नहीं, मैं प्रो स्कूल नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि this is not a perfect solution, we can find a better solution to it. That's what I'm saying. If a bacha is not opening K2, what will you do? Like not K2, but I'm talking about कि अगर if you are implementing this solution for everyone, ठीक है, तो I think तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बनाऊंगा भाई साहब, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में K2 होगा। नहीं, फिर we can talk about इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है ना। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम ये मेरी क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज करो मैं नाम लेता हूँ बिहेवियर साइकोलॉजी में, किस किस को इंटरेस्ट है, ठीक है, आधे लोगों मतलब हाँ, बाय द फर्स्ट अगर मैं स्टार्टिंग में सिर्फ एक बच्चे को जाके बोलता हूँ बिहेवियर साइकोलॉजी, ठीक है, उसको टर्म इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। अब मैं उस चीज का एक्सपोजर उसको किस तरीके से देता हूँ, या तो मैं उसको 1 घंटे के लेक्चर में बिठा दूं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 5 मिनट की इंटरेस्टिंग वीडियो जो उसकी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के आंसर देगी, तो वहां से उसका इंटरेस्ट जनरेट होगा। तो किस मीडियम से एक्सपोजर दिया जाता है वो भी बहुत जरूरी है। हाँ। तो आपने अगर टिकटॉक का एल्गोरिदम देखा होगा, तो टिकटॉक क्या करता है कि जब कोई ऑनबोर्ड करता है ना, तो उनसे वो पूछता नहीं है कि आपकी इंटरेस्ट की चीजें कौन सी है, शायद पूछता भी है, बट उनके ना क्यूरेटेड वीडियोस होते हैं कुछ जो इनिशियली सब लोगों को दिखाते हैं वो,
और उनको पता होता है कि ये वीडियो देखेगा तो अच्छा लगेगा ही लगेगा उसको, तो ऐसी टाइप की ही वीडियोस वो डालते हैं। एंड फिर जैसे जैसे वो उस हिसाब से और स्क्रॉल करते जाते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो स्टडी करते हैं, और तो उनको समझ में आता है कि कैसे वीडियोस और दिखाने हैं उनको। तो बेसिकली क्या है कि हमको ये ऐसी वीडियोस देखनी है जो उस प्रोफेशन की है, बट हमको पता है कि ये इंटरेस्ट स्टार्ट करेगी ही करेगी। अगर इससे भी नहीं होता इंटरेस्ट स्टार्ट, तो शायद इसका नहीं होगा इंटरेस्ट स्टार्ट इस चीज में। That's a nice point. Also, there's the flow to life as well, right? You don't realize things that you want to do in a moment. You try them out. You spend 2-3 years doing it, and then maybe flow nahi baith raha hai, so you don't do it. Or agar flow baith raha hai and it's very in a very good direction, you keep on doing it. So there is a flow aspect to life as well. Things take their time, and if you do them in haste, they might become waste, और right? So that is also an एल्गोरिदम्स interesting एल्गोरिदम avenue के साथ to पंगा think क्या है about. कि एल्गोरिदम अगर तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा ना, देखो algorithm अगर बनाने बहुत वाले स्ट्रिक्ट हम हो हैं, जाएगा तो रैंडमनेस खत्म कर देगा। रैंडमनेस खत्म नहीं होगा। देखो कैसे हाँ नहीं, नहीं होगा, मैं बस you Fake need to design randomness the आ जाएगा. algorithm that way. That's the thing. You need to be mindful कि हमको algorithm बनाना कैसे है। बना तो हम ही लोग रहे हैं ना। हाँ मतलब प्रोग्रामिंग में कहते हैं ना कि रैंडमनेस इज फॉल्स कांसेप्ट, रैंडमनेस कुछ Yeah, नहीं होता। it's a false concept. Yeah. ये मेरे को नहीं समझ में फॉर्मूला आता की क्या है। नहीं ये नहीं हाँ, डिस्कस मतलब- करेंगे, दिस इज ऑफ टॉपिक। अरे मतलब मैं रैंडमनेस के ऊपर बात कर रहा हूँ कि एल्गोरिदम से अगर तुम रैंडमनेस इंट्रोड्यूस करना चाहते हो ना, तो एक्चुअल रैंडमनेस होगी नहीं जितनी रैंडम लाइफ वो है। फेक रैंडमनेस होती है। सो इफ यू नो अबाउट द आईफोन ना, आईफोन का हाँ। जो रैंडम फीचर था, दैट्स नॉट एक्चुअली रियली रैंडम. They made it that way, that it's fake random, so it feels like it's random, because sometimes we feel like true random is not random, क्योंकि ऐसा randomly हो सकता है कि one song is playing 10 times. That is also a random probability. There is a philosophical argument that even life is not random. Like everything depends on all the previous state, and you can predict every future state from the current state. So if we take that as true, then like randomness is anything which is just enough random. So we can assume that computers are also random. Like if the coefficient of randomness is high enough. मेरे अगर को तुम्हें रैंडमनेस कैसे बढ़ती जाएगी, जितने ज्यादा वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करते जाओगे उतनी रैंडमनेस बढ़ती Serendipity आती जाएगी, रहेगी, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है बन ना? जाएगी ना। अब more the लाइफ से ज्यादा complex, वेरिएबल्स तुम किसी एक एल्गोरिदम में कैसे ले आओगे? वही एग्जैक्टली। नहीं, बट उतनी लाने की जरूरत भी नहीं है ना, वो डिपेंड ऑन दी exactly. It needs to be good enough. It needs Yeah. to get through Doesn't the need to be perfect. Yeah. I get the point कि एल्गोरिदम से हो सकता है। आई एम जस्ट पुटिंग अ काउंटर आर्गुमेंट कि मतलब Yeah. ये एक थॉट प्रोसेस भी हो सकता है। बिल्कुल। वैसे तो मुझे पता है हर चीज एल्गोरिदम ही कंट्रोल कर रहा है यार, मतलब क्या ही जिंदगी के सारे साल तो एल्गोरिदम ने कंट्रोल किया। Also there is an interesting concept, like you can link algorithm to a human and introduce human randomness in the algorithm. Suppose जैसे क्लैश ऑफ क्लैंस गेम हो गया, ठीक है, तो वहां पे अगर आप खाली कंप्यूटर्स के साथ खेल रहे हो तो वो बहुत कम रैंडम है, बट अगर कोई भी मल्टीप्लेयर गेम जो होता है वो टेक्निकली बहुत रैंडम होता है, क्योंकि उसमें एक प्लेयर लाइक अपने इनपुट को वहां पे ऐड कर रहा है, राइट? Too many states. या इनफाइनाइट स्टेट्स इन अगर फैक्ट। तुम जो ये कह रहे हो कि तो इसका आंसर क्या मिलेगा? तुम्हें कम्युनिटी मिलेगी जो ये कैटो है, जो इस वक्त है, वही तो है इसका जवाब। कम्युनिटी है, बट उसका एंगेजमेंट का जो डिग्री है वो चेंज हो सकता है, बहुत ज्यादा डायनामिक हो सकता है। The community is very highly on a statistically in a very different side, क्योंकि we all are against education, or not necessarily against education, but we all have different sort of mindsets कि We are a bubble, Twitter bubble. Yeah, exactly, we are a bubble. हाँ, मतलब एल्गोरिदम्स की एक ये भी प्रॉब्लम है ना कि इको चेंबर बन जाता है यार, बहुत जल्दी इको चेंबर बन जाता है। Exactly. बहुत जल्दी। So बहुत statistically insignificant और very variable हमारा ग्रुप है, हमारी कम्युनिटी बहुत statistically variable कम्युनिटी, तो you cannot generalize this will apply to everyone, है ना? वो वेरिएबिलिटी तो स्कूल लाता है ना यार, अगर तुम ऐसे सोचो वो वेरिएबिलिटी करना पड़ेगा ये कि ऐसे you cannot। और बैकग्राउंड भी तो लाता है ना, some people are too poor to even afford a smartphone to go on a Zoom call, so that variability is life itself. जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो हमको जो टीजी है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो डिफाइन करना बहुत जरूरी है, और गिवन कि हम
इस टॉपिक के ऊपर उस हिसाब से बात कर रहे थे, हमको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये टारगेट ऑडियंस नहीं है जिसके बारे में डिस्कशन है. Also, Rutwaj, you were talking about Clash of Clans. Isn't this that? Isn't this a Clash of Clans? अरे हाँ, ये तो ऐसी टाइप का, बट क्लैश ऑफ नहीं है, कोलैबोरेशन ऑफ क्लैंस. Contribution of clans, but it doesn't sound that well.